We are in fact thankful to the Election Commission of India for having announced the election schedule in the Union Territory of J&K. Last election was held in 2014 and now it's 10 years that we are contemplating to hold the elections, which should be held in a peaceful atmosphere. The people are entitled to have their elected government. That is the basic necessity under the Constitution of India also. But unfortunately, after the last government had resigned, the election could not be held for various reasons. But now we feel that the Election Commission has taken a very bold step with the blessings of the Government of India that elections are scheduled to be held. And according to the Supreme Court directions also, which are to be complied with, that it has become necessary to hold the election. But my viewpoint would be that the statehood should be restored immediately after the elections are over, so that the people of Jammu and Kashmir and the elected representatives, they have the due powers. They have the powers to execute the duties or works whatsoever they are assigned to them. So this is the high time that the people participate in the maximum number, so that as the parliament elections were held last about 2 months back, that's why the necessity of holding the elections has been felt, and it is going to be completed very soon. And I am hopeful that the people will participate in large number to elect their representatives. आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस कर दिया कि आने वाले दिनों में ये इलेक्शन होने जा रहा है। चर्चा तो बहुत थी, कुछ लोग इसको मजाक में लेते थे, कुछ लोग हंसी उड़ाया करते थे, कुछ इसको सीरियस में कोई लेता ही नहीं था। और आज एकदम उन्होंने जो अनाउंस किया इलेक्शन के लिए, सबके चेहरे खिल उठे हैं और लोग ये देखने लगे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे जो रुके हुए काम हैं वो हमें पूरे हो जाएंगे। और कुछ लोग ने बड़ी आस लगाई होती है कि डेमोक्रेटिक जो हमारा जो ये अपना प्रोसेस है, इसमें आने के लिए कहीं कोताहियाँ होती हैं, कहीं कुछ भी होता है, लेकिन इससे इलेक्शन से लोग अपने बिल्कुल डेमोक्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगे। और जिनके काम रुके हुए हैं वो तो बेचारे दुआएं देंगे कि किसी का कुछ ना कोई काम तो रुका ही रहता है, क्योंकि यूटी जब से बनी है बहुत सारे लोगों के काम रुके हुए हैं, लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं कि कब ये इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और अनाउंस कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट तो आज से ही लग गया है। और हम फिर एक बार जो इलेक्शन कमिश्नर और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर वालों की सुन ली और ये इलेक्शन होने जा रहा है, हमें इंसाफ मिलेगा। आज बड़े खुशी का दिन है कि आज हमारी स्टेट में श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 10 साल बाद हमारे इधर चुनाव होने जा रहे हैं असेंबली के। लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि 10 साल बाद ये हमारी चुनी हुई सरकार हमारे स्टेट में आएगी और लोगों को जो काम रुके हुए हैं, लोगों का काम होंगे, लोग अपने नुमाइंदे खुद चुन सकेंगे और अपने मर्जी से अपना चीफ मिनिस्टर बनाकर उसको बैठाएंगे, चीफ मिनिस्टर को बैठाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि इस सरकार जो है सरकार। We are very happy. We the people of UT of Jammu and Kashmir are very happy today. We congratulate and welcome the decision of central government to conduct the elections in the UT of Jammu and Kashmir, so that people should have a fair government elected by them, and the procedures and other operations, different operations of the day-to-day operations of people and work of people, they can go to their representative, who are the representative of the people, elected by the people. They can go and they can have their work done from those people. So we are very happy and we congratulate central government for this good decision. 10 सालों के बाद जम्मू और कश्मीर में अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम एज ए युवा बहुत ज़्यादा खुश है कि इस बार हमारे को अपनी एक सरकार मिलती हुई दिखाई देगी और इस बार हम मतदान देने जाएंगे, दूसरी बारी जाएंगे और इस बार अच्छा से हम अपना मुख्यमंत्री आते हुए हमारे को इस बार हमारी स्टेट में दिखाई देगा। आज अस बड़े खुश
ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆने वाले जल्दी लोकें की एक अच्छी सरकार जड़ी काम करने वाली सरकार जड़ी तुसें की 4 अक्तूबर की नज़र आग ते इहदे कन्नै के बहुत बहुत मुबारक है जम्मू कश्मीर के लोगों की कि इलेक्शन आने वाली है तो बड़ी चरिए का हिस्सा बनो। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो इलेक्शन की डेटें अनाउंस की हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि कम से कम 10 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में कोई लोकप्रिय सरकार बनेगी और लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर की रहनुमाई करेंगे। आज इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली से जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं और हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल है। काफ़ी लोग खुश हैं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं इससे अच्छा माहौल बनेगा और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको अपनी मनपसंद सरकार चुनने का हक मिलेगा और अच्छी सरकार आएगी जिससे लोगों के जो रुके काम हैं वो भी बनेंगे। और ये लोगों का जो हक था काफ़ी देर से कि लोग अपनी मर्ज़ी से कोई एमएलए नुमाइंदा अपनी मर्ज़ी से चुने जिससे वो काम करवा सके, जो उनके रुके हुए काम है वो करवा सकें। और हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन होंगे और जम्मू कश्मीर के लोग अपनी मर्ज़ी से नुमाइंदे चुनेंगे और यही जम्मू कश्मीर के वासियों को और मैं इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये एक अच्छी सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी मनपसंद से सरकार चुनेंगे तो वो एक अच्छी सरकार होगी और जम्मू के जो लोग हैं जिनको काफ़ी उम्मीदें थी वो अपनी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए अपना नुमाइंदा जो भी अच्छा सा होगा उसको चुन के लाएंगे और जम्मू कश्मीर में अच्छी सरकार आने से खुशी का एक माहौल बनेगा। आजकल जम्मू कश्मीर वास्ते जी इलैक्शन लॉन्च हुई है असैंबली की, खुशी की गल है। असें लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जमहूरीयत का लोगों का हक है। 10 साल लोग जमहूरीयत को पिछे रहे, लेकिन ये कन्नै कन्नै लोग चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा मिले और गवर्नर आनिए बैठा है। स्टेट की बड़ी टोकी डिमांड ही, क्योंकि स्टेट ही महाराजा के टाइम की दिती थी और उसी ड्यूटी बनाए दा और उसी इलैक्शन करा देन। ये थोड़ा जिहा दुख लगा है, लेकिन इलैक्शन अगर एक इन्नी देर बाद करा देन तो लोगों का हक हा कि हूँ इलैक्शन होने के बाद लोग अपने कम्में वास्ते कुसै कोल जाई सकन। जी ब्यूरोक्रेसी अपने आप की चला दी ही वो लोग कोई जो नुमाइंदे चुनी आउगन उनके कोल जागन, उनके कन्नै अपनी गल रखन, अपन मुश्किल रखन। उम्मीद है कि उनकी मुश्किल हल होगन और असें भी उम्मीद करने कि सेंटर को जल्दी कोला जल्दी इलैक्शन की करने पूरी तौर पर स्टेट असीं वापस दित्ती जा। स्टेट साढ़े लोकें जम्मू के लोकें का हक है कि असीं स्टेट चाहिए है, स्टेट मिलेगी साढ़े लोगों के फैसले होंगे ना। फिर भी पावर अगर एल जी को रहनगियां तो जो लोग जित्तियै आउगन वो लोगों को अगर वो फैसला नहीं कोई करी सकते होगन, लोगों की कोई मदद नहीं करी सकते होगन तो बेचारे लोग केह् करियै पब्लिक केह् करूँ, मेरा कोई काम पैदा मैं केह् करूँ इस बात। Today the date of elections in Jammu and Kashmir has been announced by the Election Commissioner of India. Really this is a very welcome step for Jammu and Kashmir people. Although it is very late, but a very good decision. The people will provide a lot of relief as the general public and those who are stuck in the secretariat of less work, while the civil government can understand the people needs. In the same bureaucracy, there is very little interaction between the people and no work is done. As an artist, I have also tasted all these arts in my life. I also want a government elected by the people of Jammu and Kashmir, and this is a very good decision. Once again, I will thank Election Commissioner of India for this good decision. And I will be very thankful to all of our people of Jammu and Kashmir who are very needy for these elections. We are very pleased to know about the initiating of election process in J&K state. We are very thankful to Narendra Modi ji, हमारे Prime Minister, and LG Sahab, who have initiated the process of conducting election of the state. It seems and we hope that the elected representative of our assembly will fulfill the dreams of our local public and the long pending issues of the people and our residents or our state shall be fulfilled by the elected government.